this session. Uh, I pre- is it on recording? हाँ भैया. हाँ भैया. Okay, okay, cool, cool. Hope you and your family members are also doing good in these hard times. So let's start today's session. Is my screen visible to all of you? हाँ भैया. So, as you all know, the agenda of today's is resume. So, सबसे पहला question है कि why resume? Like, why should one should have resume or who should have resume? Can I know like how many of you are from first year or second year or third year? Hello. Like you can use chat. Like we will keep it more interactive. Okay. So Uh, a resume is an entity like some of you might believe like I'm in first year, I should not have a resume like or like resume is not really meant for me. Or belongs to first year or second year, or it generally belongs to something which people belongs to in third year or fourth year. So it's generally not like that. It's straight from like after you finishes 6 months in your college or anything. Like this session will be more oriented towards a student of CS and IT. But if there is person from another branch or another domain, he can relate to his context too. It, so after sparing 6 months in your college life, you should try to have a resume. Uh, but whatever you have learned in that time frame in your resume, like if you have resumed like you will keep on meeting people in your life on general interval, like if you are traveling like, and if you tell someone like I'm pursuing software developer, so like he might be looking for positions of intern, or he might be having something. So he, on the impromptu moment, he can ask you like, can I have your resume? And if you will like say no, it will generally create an impression like that you are generally not doing good, or you are not much serious about your life. Like so uh, to show yourself always ready for the opportunities, you should always have resume. So like why resume? Like so every time like you cannot be there to present yourself, like you cannot tell yourself. Generally it's more of if I'm you are applying for an opportunity, I'm not be the exact responsible person whom will be looking to your capabilities, or who will be having the power to hire you down. So in these cases, or in this scenario, usually resume whenever there is a hiring, no matter for an intern or a full-time employee, the resume circulates from one level to another level. So you might introduce yourself at one level, but to go further and beyond, nobody is going to generally remember unless you create a massive impression. So resume generally help in that case. It displays out your capabilities, like how you are, what you have done, and what you are capable of. Like it shows your learning skills. Like if you have done tremendous projects in by your second year itself, it generally validates the point that you are good enough, you are a good learner, and you likes to take opportunities. Are we clear on this point? Ki why resume is important? So moving to the next part. So what should an ideal resume look like?
So an ideal resume must, in today's scenario, must have only information about you. Like generally, people to fill up spaces, they put it should have only professional details about you. Getting more into the context, we generally put like our address. Nobody cares about our address where we live, so there is no need of putting down that address. And generally I have found matlab, you will find templates where like people generally put their blood group. So uh, in today's scenario it's also not really contractual. मतलब यार ब्लड ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है यार अपने रेज्यूमे पे डालने की. इट इज मोर वाज इन लाइक लास्ट डिकेड जब मशीनरी वाला काम होता था तो लाइक वो चीजें चलती थी. देन व्हेन मोर जॉब्स वर मैकेनिकल ओरिएंटेड और लाइक देयर कुड बी सम सीरियस इंजरी इन द मशीन्स एंड ऑल. सो उस वाली सिनेरियो में यूज होता था यार वो ब्लड ग्रुप वाला. लाइक देयर कुड बी कैजुअलिटीज बट इन व्हेन इट कम्स टू सीएसआईटी डोमेन ये काफी फालतू चीजें हो जाती है. मतलब यू शुड अवॉइड. मतलब नोबडी केयर्स अबाउट देम. वैसे ही मतलब वन पेज फॉर्मेट लिखना होता है और उसमें भी आधी चीजें अगर तुम ये भर दोगे तो इट वॉन्ट लुक गुड. और पहली बात मतलब द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ डोंट एग्जीक्यूट. मतलब किसी का टैम्पलेट उठाया एंड उधर से चीजें लिखनी शुरू कर दी कि यार इसने ये लिखा हुआ है ये अच्छा लग रहा है. ओनली राइट वॉट यू नो. सो बेसिकली वेन एवर यू गोज फॉर एन अपॉर्चुनिटी, so generally when you apply for in a company or you are interviewing with a company, initial two rounds are generally from your resume only, no matter at what skill you are. Like you are a fresher or you are a professional. They goes down to testing your skills after they are done with verifying your resume part, that what you have written is really validated and you are not like flexing your help or just bluffing on your skills. Another major point is always avoid grammar and spelling mistakes. Like this is the most intolerable thing that HR does, and it should be avoided. Like a resume is the most important entity of a professional life. Like you should at least devote like 7 days of your life on making your resume. Like it's really important how much time you spare. Like it generally shows how, I will be repeating that on the same point, it generally shows how eager and how serious you are about the opportunities. So the common reason like why resumes are not selected is spelling mistakes and grammatical mistakes. And coming to the how the format should be like, so influential things should always stop. Like if you have done something crazy and सारी दुनिया उसको नहीं कर रही है तो वो चीज सबसे ऊपर होनी चाहिए. Like if you are at like good at competitive programming, or like or you have won an national level award in something, so it should come into your headline. It should be under your name, it could be like similar to Devraj Kumar, and under that in a some smaller font, it should be like a 3-star coder or a 4-star coder, and like whatever things like could be influential. You think influential things are always different at different levels, so don't compare with others. Like he's doing this might not be influential. It really depends. Like if you are doing like if you are a Django developer and like you write it in the first year or second year, it's an influential thing according to like a second year. Like but if you are still sticking with the same till fourth year, you are just writing you are a Django developer, it might not sound influential. So it's a series of frame of time. Like influential things change with like how much experience you have or like how much time you have spared.
Next comes is nothing defines you more than your project. और लाइक कभी भी कोई भी कंपनी हायर करेगी वो बेसिकली वो यही देखती है यार कि तुम पे ज्यादा एफर्ट्स ना मारने पड़े. लाइक बेसिकली व्हेन अ कंपनी हायर्स यू एट द वेरी इनिशियल, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं आता होता तो देयर विल बी जनरली टू रिसोर्स स्पेयर्ड. एक तो वो तुम पे इन पेड इंटर्न बोल रहा हूँ. एक तो वो तुम्हें भी पैसा देंगे एंड यू विल बी लर्निंग थिंग्स, यू वॉन्ट बी एडिंग वैल्यू टू दैम. ठीक है. और दूसरा मतलब तुम्हें कोई ना कोई बंदा ट्रेन कर रहा होगा तो यू विल बी यूजिंग 2x ऑफ द रिसोर्सेज. वन इज यू एंड द अदर पर्सन हु इज ट्रेनिंग यू. सो company usually looks for the person or the resumes are more prioritized जिन लोगों ने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं. Is it clear? Are we on the same page? Any questions till now? नो भैया. मतलब किसी का है तो चैट में डालते रहो यार, हम लोग स्क्रॉल करके मतलब लेते रहेंगे. ठीक है. तो ऑलवेज मतलब यार प्रोजेक्ट्स हमेशा होने चाहिए. लाइक हमेशा प्रोजेक्ट करो. लाइक टिल फर्स्ट ईयर के एंड तक मतलब एटलीस्ट 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर लो. बट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर के मतलब बाय थर्ड सेम एक मेजर प्रोजेक्ट तो होना चाहिए. लाइक जिसमें तुमने पूरा फुल स्टैक ऑलमोस्ट किया गया हो. इफ यू आर लुकिंग टू द डोमेन ऑफ वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग वगैरह का डोमेन का मेरे को ज्यादा नहीं पता, बट हाँ उधर तुमने एटलीस्ट टाब सॉरी टाब्लो कह रहा हूँ, लाइक मॉडल्स वगैरह अच्छे से ट्रेन किए हो. समथिंग सिमिलर टू दैट ऑफ लाइक कुछ होना चाहिए. मतलब इट शुड बी नॉट लिमिटेड टू दैट लाइक फोर्थ ईयर है एंड तुम सिर्फ ये लिख रहे हो कि लाइक सिम तुमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है. और यू शुड हैव लाइक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स. उससे यार तुम्हारी मतलब लाइक द बेटर योर प्रोजेक्ट इज उससे तुम्हारी लाइक हाउ यू थिंक मतलब उसमें डिफाइन होता है यार मतलब तुमने क्या चीज यूज किया. लाइक हाउ हाउ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. मतलब जो भी तुम प्रोजेक्ट बनाते हो वो लाइक अगर बॉटम लाइन देखी जाए तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है यार. ठीक है. अगर तुमने लाइक अटेंडेंस सिस्टम ही बनाया तो इट्स बेसिकली मैनुअल वर्क को हटा रहा है वो. लाइक मैनुअल ट्रैकिंग डाउन ऑफ रिकॉर्ड्स को हटा रहा है. ठीक है. तो और फिर तुम उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है कि तुमने और अगर यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड आ रहा था तो तुमने उसको कैसे मैनेज किया या एक बेटर रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किया. तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल्स कि कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कितने ज्यादा तुम्हारा वास्ट है. मतलब देखने का नजरिया जिसे बोल देते हैं. लाइक हाउ क्यूरियस यू आर एंड हाउ बेटर यू आर एट एनालाइजिंग द सिचुएशन. वो सारी चीजें ना एक प्रोजेक्ट डिफाइन कर देता है. तो हमेशा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. अगर तुम्हारे रेज्यूमे बिल्कुल खाली है एंड यू हैव जस्ट लाइक 5 to 6 प्रोजेक्ट्स तो भी बहुत ज्यादा कैपेबल होता है यार तुम्हारा लाइक रेज्यूमे. लाइक अगर तुमने धासु प्रोजेक्ट्स किए ना और स्किल्स वगैरह का सेक्शन बिल्कुल खाली छोड़ दो तुम्हारे प्रोजेक्ट से बता देंगे तुम्हारी किस लेवल की स्किल्स है. लाइक वो व्हाट आर यू मतलब टोटल कैपेबिलिटीज उधर से ही डिफाइन हो जाती है. नाउ कम मेजर पॉइंट मतलब कभी भी रेज्यूमे पे पैराग्राफ मत यूज करना. मतलब कहानी मत लिखना. नोबडी केयर्स अबाउट कहानी. मतलब पीपल लोग लिख देता है मतलब पहले मतलब नाम के नीचे ही आ जाती है. मतलब अभी जस्ट रेफरेंस बना लो. अभी जब कुछ रेज्यूमे आए थे हमारे पास उनको जब रिव्यू करेंगे तो वो मैं बताऊंगा कहानी वाली चीजें क्या होती है. ठीक है. तो बिल्कुल भी कहानी नहीं लिखनी चाहिए यार. मतलब नोबडी केयर्स अबाउट कहानी कि तुमने क्या जहां कहानी दिखी उसे कोई नहीं पढ़ने वाला. उसे सीधा स्किप करके वो जाएगा फिर सीधा डस्टबिन में. तो बिल्कुल कहानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. और मतलब एक जनरल रूल होता है कि एक सेंटेंस जो तुम यूज कर रहे हो वो उसमें 10 से 15 ही वर्ड्स होने चाहिए. उससे ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए. एंड वो पूरी चीज एक्सप्लेन कर देना चाहिए. और मतलब जो हेडलाइन भी होती है यार बहुत सारे लोग लिखते हैं मतलब उस पे लिख देते हैं आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट या थर्ड ईयर स्टूडेंट फोर्थ ईयर स्टूडेंट आई नो दिस 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 माय हॉबीज आर दिस दिस दिस. इस टाइप की चीजें भाई बिल्कुल अवॉइड करो. मतलब पैराग्राफ तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए. हमेशा जो भी चीजें तुम एक्सप्लेन कर रहे हो लाइक मे बी इट्स योर वर्क एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट्स हो गया
ठीक है, तो वो हमेशा बुलेट्स की फॉर्म में होना चाहिए। जनरली यू डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट इन 3 बुलेट्स। ठीक है, द प्रॉब्लम यू सॉल्व, लाइक कि लाइक वी जैसे ये हो गया कि तुमने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया। ठीक है, अटेंडेंस सिस्टम इज लाइक, या कोई भी यार छोटे से छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, बताओ कोई अपना प्रोजेक्ट बताना, किसी ने कुछ बनाया हो। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत बेसिक सा है, तो लाइक तो भी बता दो, लाइक तो हम बताएंगे लाइक कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे लिखना होता है, ताकि वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल लगे। हेलो यार, किसी ने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया क्या? हाँ भैया, मैंने भी एक एंड्रॉयड की ऐप बनाई थी जो OCR का काम कर रही थी। बेसिकली आप स्कैन करोगे, अगर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है पेज पे वो स्कैन होके मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हो जाएगा फोन के अंदर। हाँ तो यार मतलब एक बेसिक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट काइंड ऑफ। तो इसमें ये हो जाता है बेसिकली, द प्रॉब्लम यू सॉल्व इज लाइक तो प्रॉब्लम्स यही हो जाता है बेसिकली कि प्रॉब्लम तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो कि डेवलप्ड एन ऐप टू रीड टेक्स्ट थ्रू स्मार्टफोन। ठीक है, व्हाट यू यूज, लाइक यू यूज्ड जावा, ठीक है, या फ्लटर फ्रेमवर्क, और बैकएंड में जो भी एपीआई, एंड द फाइनल आउटकम ऑफ द एंड द इम्पैक्ट इज, लाइक इसमें तुम लिख सकते हो कि लाइक जो भी तुम्हारा बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे, लाइक दे वर कन्वर्टेड टू वर्ड, लाइक इन लाइक जो पूरा टाइप करना पड़ रहा था, और अगर एक पैराग्राफ को टाइप करने में लाइक और 5 मिनट लग रही है, तो यू बेसिकली turn down a work of 5 minutes into like of 15 seconds. That's the final outcome and the impact. मतलब हमेशा अगर तुम न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड कर रहे हो ना अपने उसमें, तो वो काफी ज्यादा अलग से एक तो दिखता है, मतलब टेक्स्ट के बीच में अगर नंबर्स कहीं पे लिखे हैं ना, वो अलग से दिख जाते हैं कि हाँ भाई वो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। एंड वो प्रोजेक्ट्स में हो ना, तो इट creates an impression कि हाँ you were you knew what you were doing and what you were expected of doing। तो वो एक अलग लेवल इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, मतलब नॉट एट HR लेवल, बट अगर टेक्निकल लेवल पे तुम्हारा जब रिव्यू हो रहा होता है रिज्यूम कि वेदर दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ, तो हमेशा तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस भी ऐसे ही डिफाइन होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स भी इसी तरीके से डिफाइन होने चाहिए। द प्रॉब्लम यू सॉल्व, वो फिर सेकंड पॉइंट होना चाहिए व्हाट यू यूज एंड हाउ वाज योर व्हाट वाज योर फाइनल आउटकम। ठीक है, और मेन इज तुम ये थोड़ा रिज्यूमे से हट के पॉइंट है, बट इट जनरली कम्स इन द रिज्यूमे। whenever you are, मतलब जहाँ जिस भी कंपनी में तुम अप्लाई करो या तुम अपना रिज्यूमे भेजने वाले हो, ऑलवेज स्टडी अबाउट इट, व्हाट इट डज, कौन सी वो टेक्नोलॉजी यूज करती है या क्या करती है। हमेशा है ना, कभी भी एक हार्ड एंड फास्ट रिज्यूमे मत रखो कि हाँ भाई ये मेरा रिज्यूमे है, यही चलेगा। लाइक मैं एक कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ और वो रूबी यूज करती है और रूबी एंड रेल्स यूज करती है, तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें मैंने रूबी यूज किया है या समथिंग रिलेटेड टू रूबी, उनको मैं टॉप पे लिस्ट डाउन कर दूंगा, और स्किल्स में रूबी लैंग्वेज को आगे लेके आ जाऊंगा। मतलब जो भी उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा ना, जो भी वो बंदे करते होंगे, उन सारे टर्म्स को मैं पहले रखूंगा, बाकी जो चीजें की होगी उनको लोअर डाउन कर दूंगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसी कंपनी है जो जैंगो पे काम करती है, तो मेरा जो जैंगो वाला प्रोजेक्ट है, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट जैंगो में किया, उसको मैं सबसे ऊपर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और फिर स्किल्स वाले जो जिधर स्किल्स वगैरह लिखते हैं, उधर मैं पहले पाइथन लिखूंगा, फिर जेंगो लिखूंगा, फिर फ्लास्क लिख दूंगा, एंड सिमिलर ही चीजें लिख दूंगा। तो ऑलवेज स्टडी अबाउट, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ भाई ये कंपनी रेज्यूमे मांग रही है, ये कंपनी आ रही है, बस फेंक के मार दिया। ऑलवेज नो, मतलब ढूंढो, मतलब थोड़ा रिसर्च करो, स्पेयर वन 1 से 2 घंटा कि लाइक व्हाट दे डू, किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और तुम किस तरीके से भाग। एंड अगर कुछ ऐसा है, मतलब लाइक इफ दे यूज AWS और GCP, या और तुम्हारा मतलब थोड़ा ट्वर्क कर सकते हो, मतलब थोड़े चेंजेस कर सकते हो यार, मतलब AWS की तरह अगर वो कंपनी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करती है, तो उधर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लिख दो यार प्रोजेक्ट में। मतलब अगर तुम्हें आइडिया है कि हाउ इट डज, तो
मतलब अगर तुमने यूज किया हुआ है तो तुम सारे अपने प्रोजेक्ट्स में वो चीजें चेंज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मतलब इससे काफी चीजें मतलब वो होती है यार, मतलब डिटरमिन, लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल पॉइंट होता है मतलब। एंड कभी कभी ये भी होता है तुम्हें अपना रिज्यूमे बेकार भी करना होता है यार, मतलब अगर तुम काफी अच्छा सा रिज्यूमे लेके जाओगे and you are applying for a like normal सी company, is it a MNC like TCS और Infosys, तो तुम्हें बहुत चीजें निकालनी भी पड़ती है। यू एक्ट लाइक तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक आता है, तो तुम्हें उधर से बस कि हाँ भाई जो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है कई बार वो भी आ जाएगा कि हाँ ये तुम्हें फिल्टर आउट करनी पड़ेगी, बहुत बेसिक चीजें लेके जाना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी, मतलब अगर तुम ज्यादा लेके चले गए तो भी वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये होता है कि लाइक वी आर नॉट डूइंग दिस लेवल ऑफ वर्क, तो ये बंदा इधर रुकेगा नहीं, तो वो फिर शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते। एंड अगर तुम उस लेवल पे चीजें नहीं लिख के जाते हो, फिर सामने ये दिक्कत आ जाती है कि यार इसको इतना सिखाना पड़ेगा, इसने इससे रिलेटेड कुछ काम नहीं किया है, कि मैनेज कैसे करेगा। So ये पॉइंट कम कवर हो गया, पुट स्किल्स रिलेवेंट टू द कंपनी फर्स्ट। हाँ भाई, और एंड मेजर इज मतलब ABSIT के साथ लाइक और द कॉलेज टीयर 3 के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत है भाई कैंपस सेमेस्टर, कैंपस सेमेस्टर, कैंपस सेमेस्टर। भाई जब तक तुम कुछ इम्पैक्ट ना क्रिएट कर रहे हो, मतलब जब तक, ठीक है तुम इंटरशाला में कैंपस एम्बेसडर बन गए, जब तक तुम 20 अपने कैंपस से है ना 20 लोगों के इंटर्न ना लगवा दियो, तब तक उस चीज को मेंशन मत करो। लाइक कैंपस एम्बेसडर सबसे खाली चीज होती है, मतलब वो भाई सीधा वो सीधा इम्पैक्ट करता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ नहीं किया, ठीक है। मतलब अगर इन्फ्लुएंशियल है यार, मतलब इज इट माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पार्टनर और या सिस्को में थे तुम, लाइक अब मतलब अगर तुम्हें टेक डोमेन में जाना है यार, मतलब ठीक है, तो इधर का माइक्रोसॉफ्ट में समझ में आता है कि हाँ तुम टेक्निकल काम करते हो, लाइक यू वर्क फॉर टेक्निकल सेशंस, या सिस्को में हो तो भी तुम टेक्निकल काम ही करते हो। बट तुम इंटर्नशाला के बन जाते हो, या कोडिंग निंजास के बन जाते हो, या कोडिंग ब्लॉक्स के बन जाते हो, इसमें तुम्हारा यार मैनेजमेंट वाला काम आ जाता है या सेल्स वाला काम आ जाता है, एंड दिस इज ऑफ लिटरली ऑफ नो यूज। मतलब वो बिल्कुल भाई कूड़े वाली चीज होती है, मतलब वो कि भाई कुछ था नहीं इसके पास भरने को, एंड कैंपस एम्बेसडर की पोजीशंस पर रखी, मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई ये चीज। तो मतलब ये चीज तो मतलब जो ट्राई भी कर रहे हैं ना कि हाँ भाई इसका कैंपस एम्बेसडर बन जाता हूँ, उसका कैंपस एम्बेसडर बन जाता हूँ, भाई वो लोग भी अवॉइड करो। मतलब लुक समथिंग प्रोडक्टिव, मतलब करो तो भाई बताओ मत ना, अनलेस यू आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, कि ठीक है उससे बन गए हो और फिर ये चीज है। मतलब जब तक किसी चीज में किया नहीं है ना कुछ, अगर तुमने उधर सेल्स किया है लाइक रेवेन्यू, मतलब तुम कोडिंग निंजास के बन गए हो, कोडिंग ब्लॉक्स के बन गए हो, एंड उसमें तुमने लाइक 20 बच्चे इनरोल करा दिए या 40 करा दिए, देन यू कैन मेंशन। बट अगर तुमने 3 बच्चे 4 बच्चे वो भी तुम्हारे दोस्त, उनको लाइक बहला फुसला के भाई बढ़िया है ये है वो है इस तरीके से, तो भाई वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट मतलब पर्सनली स्पीकिंग कैंपस एम्बेसडर की सिर्फ एक पोजीशन रखो मैक्स टू मैक्स, एंड जनरली मतलब इस चीज से दूर ही रहो यार, मतलब काफी नेगेटिव सा रोल प्ले करती है यार ये। ठीक है, और फिर जब प्रोजेक्ट्स जो भी तुम लिखते हो उसमें हमेशा लिंक्स, मेक श्योर कि हमेशा लिंक्स रहे, मतलब टू योर कोड एंड प्रोजेक्ट, मतलब अगर होस्ट किया हुआ है तो वेबसाइट का लिंक और साथ में कोड का लिंक। मतलब कोई देखता नहीं है यार कोड वगैरह इतनी डेप्थ में जाके, जनरली जनरली बोल रहे हैं। मतलब अगर किसी को चोर होती है वो देख भी लेता है, या फिर जब तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा होता है, मतलब सिलेक्शन टाइम पे जब तुम्हारी रेज्यूमे की स्क्रीनिंग हो रही होती है, इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग, उस टाइम पे जनरली कोई नहीं देखता कोड है, ना तुम्हारा कोई कोड देखेगा ना प्रोजेक्ट देखेगा। बट अगर तुमने लिंक डाल रखा है तो दे बिकम जनरली बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट ऑन यू, कि हाँ भाई यार इसने कोड डाल रखा है, अगर ये डिस्प्ले कराना चाह रहा है अपना कोड, तो हाँ भाई इसने सही काम किया होगा, नो मैटर वो चल रहा है इनकम्प्लीट है क्या चीज है। जनरली मतलब एक रेज्यूमे पे 10 से 15 सेकंड स्पेयर होती है, उससे ज्यादा स्पेयर नहीं होती है।
तो भाई 10 से 15 सेकंड में कोई जनरली मतलब 1-2% केस में होता है कोई खोल के देखेगा, और उसमें भी तुम्हारी लाइन टू लाइन जाके कोई नहीं देखेगा। तो सामने वाले को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए हमेशा लिंक्स डालो अपने कोड के, और प्रोजेक्ट्स रखो। मतलब अगर वो होता नहीं है ना, मतलब अगर बेसिक भी बनाया तुमने डाल दिया, तो वो एक तुम्हें +1 लेवल दे देता है कंपेयर टू अदर पर्सन जिसने नहीं डाला है। नो फैंसी फॉर्मेटिंग, कीप इट सिंपल। मतलब उसमें मतलब कुछ लोग मतलब अलग ही लेवल पे कर देते हैं भाई। मतलब इफ यू, अगर तुम डिजाइन की प्रोफाइल पे कर रहे हो एंड तब फैंसी है, तो लाइक इट फुलफिल्स द पर्पस। बट अगर तुम CSIT को कर रहे हो यार, मतलब तो उसको नॉर्मल ही रखो। मतलब उस पर एक मॉडल टाइप का फोटो लगा दिया अपना। मतलब ये चीजें यार मैंने भी किया है। मतलब सेकेंड ईयर में मेरा भी एक रेज्यूमे हुआ करता था, तो उसमें भी मैंने भी एक अपनी मस्त की भाई DSLR से फोटो वोटो क्लिक करवा के लगवा रखी थी। बट इट्स ऑफ जीरो सेंस, मतलब बहुत ही बकवास है। नोबडी केयर्स यार तुम कैसे दिखते हो, क्या करते हो। मतलब हाँ, क्या करते हो मैटर्स, बट कैसे दिखते हो, लाइक हाउ यू लुक, या तुम्हारी फोटो वो बिल्कुल भी मैंडेट नहीं होती यार। मतलब अवॉइड यूजिंग। मतलब और फोन्ट्स भी ऐसे मत रखो यार ऊपर नीचे, नॉर्मल एरियल फोन रखो। और चीजें मतलब देर आर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर वर्किंग इन कनाडा ऑन, तो उधर काफी कंपनीज का तो यही है कि वो कलर, अगर तुमने कहीं कलर भी यूज किया हुआ है ना अपने रेज्यूमे पे, दो माई लेटेस्ट रेज्यूमे इज कलर्ड। बट अगर तुम किसी काफी कैनेडियंस कंपनी या US कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो, तो उधर वो कलर्ड रेज्यूमेज को ही भी प्रिफर नहीं करते। लाइक दे स्प्लिट इट आउट, उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वाला चाहिए होता है। टू मैनी कंपनी की प्रेफरेंस होती है। तो भाई मतलब कीप इट सिंपल सोबर, और मतलब टू द पॉइंट। मतलब उसमें काफी कलाकारी मतलब करने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब और फिर कुछ लोग हैं ना, सबसे पहले एजुकेशन को लिख देते हो। मतलब जनरली यार ABCIT से हो ना, तो और मार्क्स ऐसे नहीं, मतलब जब अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और एक अच्छा वर्क से एक्सपीरियंस है, तो उस वाले केस में ना अपनी एजुकेशन को हमेशा लोअर डाउन लेके चले जाओ। मतलब सबसे आखिरी में लिख दो। मतलब हमेशा एम करो कि वो आधा रेज्यूमे पढ़े और वो तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर ले, वो नीचे तक आए ना। तो अगर तुम पहले ही रखोगे यार कि मतलब पहले ही ऊपर डाल दोगे ABSIT कॉलेज से हो या इस तरीके से कॉलेज से हो, तो भाई सामने वाला क्या है, बैंक का कौन सा झंडू सा कॉलेज है यार ये। तो लाइक इस तरह के इंप्रेशन मत क्रिएट करने दो। मतलब अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स करो उनको ऊपर डाल दो, उसे अपने मतलब कॉलेज का भी यार काफी फर्क पड़ता है। मतलब Tier 1 हो गया, Tier 2 हो गया। एक बंदा अगर उसने कुछ नहीं लिखा एंड सिर्फ IIT का टैग डाल रखा है ना, तो लाइक उसको जनरल प्रेफरेंस मिल जाएगी। बट अगर तुमने अच्छे प्रोजेक्ट्स लिख रखे हैं और तुम्हारा एजुकेशन नीचे है, ठीक है, तो उस चीज को, और तुम्हारा CGPA अच्छा नहीं है, लाइक 7 से नीचे है, तो भाई CGPA भी मेंशन मत करो। मतलब परसेंटेज भी मेंशन मत करो। अगर सामने वाला कभी आके तुमसे पूछता है या उस पर कोई रिव्यू मेल आता है कि तुमने अपनी परसेंटेज नहीं डाली है, ये चीज नहीं डाली, मतलब काफी लोगों के साथ होता है। मतलब ABCIT में मतलब मैं तो यही बोलूंगा, परसेंटेज और प्रोजेक्ट्स के बीच एक इक्विवेलेंट बना के चलो कि हाँ भाई 8.5 CGPA से ऊपर रहे और प्रोजेक्ट्स भी तुम्हारे काफी अच्छे हो। बट जनरली नहीं मैनेज कर पाते यार। मतलब अगर तुम अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो कभी तुम अपना जनरली CGPA मैनेज नहीं होता। मतलब जो लोग कर लेते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते नहीं है यार। मतलब मैं अपनी बता दूं, मैं कभी मैनेज नहीं कर पाया दोनों चीजों के बीच। तो अगर तुम्हारी परसेंटेज अच्छी नहीं है या कॉलेज अच्छा नहीं है, तो उसको लोअर डाउन कर दो या उसको लिखो ही मत। नेवर राइट बैड थिंग्स अबाउट यू। मतलब तुम लिख दो, मतलब प्रोजेक्ट्स भी तुमने झंडू झंडू से किए हैं, उसके बाद तुम अपनी CGPA मेंशन कर रहे हो कि इट्स अराउंड 6.9 या 6.5, तो भाई इट विल मतलब क्रिएट कि हाँ भाई बंदा बस टाइम काटने के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, ही इज नॉट सीरियस अबाउट द थिंग। तो यहाँ से भी वो इम्प्रेशन आ जाता, तो उसको लोअर डाउन कर दो। ये पॉइंट हो गया। हाँ मतलब अगर तुम्हारे पास इंटर्न वाला एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले मतलब
तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए, फिर तुम जनरली प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं है, तुमने इंटर्न या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास, तो उस वाले केस में पहले प्रोजेक्ट्स रखो एंड कीप स्प्लिटेड। मतलब रेज्यूमे को है ना, मतलब अभी चलो मैं उस पर जब रिव्यू वाला सेक्शन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। हाँ, तो रिव्यू के लिए कुछ रेज्यूमेज आए थे, उसमें मैं बता देता हूँ लाइक किस तरीके की गलती क्या चीज़ है। एक सेकंड यार, मैं ब्रेक ले लूँ यार। सत्या, कैन हाँ वी भैया। डिस्प्ले आउट दीज रेज्यूम्स? मतलब उन पे नाम है लाइक काफी हाँ भैया, लोग। बस वही दिक्कत है ना, नाम है, अगर किसी को दिक्कत ना हो, जैसे मेरा, पवन का, बाकी जो अपने कोर वाले हैं उनका तो हाँ, जिसको इसको दिक्कत नहीं है, जो जो डाले थे वो बता दो, हमको दिक्कत नहीं है। काफी लोग। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप दिखा सकते हैं चाहे तो। जो मतलब मेरा ने रिव्यू के लिए डाला था एंड सेशन में अभी हैं प्रेजेंट, और उनको दिक्कत नहीं है कि अगर उनका पब्लिक डिस्प्ले किया जाएगा तो बता सकते हैं। बाकी अगर भैया, अगर आप कोशिश करिए नाम हाइड करने की, तो दिखा दीदी को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी कोई है ऐसा तो बता दो, नहीं तो भैया कॉमन मिस्टेक्स दिखा देंगे ना। ठीक है हम्म। यार, आपको मतलब उनको जनरली लेना, मतलब किसी को, मतलब यार ये वाली चीजें मत करना, मतलब कि हाँ तुम जज करना स्टार्ट कर दो या मजाक करना स्टार्ट कर दो, मतलब ये चीजें मत करना। मतलब अगर किसी रिज्यूमे, मतलब 30 पर्सन आर मच बेटर देन यू, मतलब वो तुम्हें पहले ही रख लेना चाहिए। भले ही उनके रिज्यूमेज में गलती है, बट उनके पास रिज्यूमेज है और वो उस कैपेबल रहे, लाइक दे केम फॉरवर्ड टू सबमिट इट डाउन। तो बेसिकली तुम लोगों को मतलब ऐसा जज करने वाला कोई राइट भी नहीं बचता। लाइक दीज पीपल आर हेल्पिंग यू अप ओनली। ठीक है। भैया एक अनाउंसमेंट भी करनी थी। हाँ हाँ, तो गाइज जो जो यहाँ पे अभी ज्वाइन किए हैं, अभी रिसेंट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं और जो भी कोई है, उनको एक बार बता दो कि क्या है सेशन का इम्पोर्टेंस और क्या चीज़ है। और लास्ट में एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो कि बाद में रिवील होगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। एंड वी ऑल्सो हैव ओपन द फॉर्म ऑफ रिज्यूमे रिव्यू। जो हमने फॉर्म बनाया था वो ओपन है अभी भी, और उसमें आप लोग अभी भी फिल आउट कर सकते हैं। एंड दीज रिज्यूमे विल बी रिव्यूड बाय देवराज भैया, तरुण भैया, निपुण भैया एंड सहयोग भैया। ओके, सो आई गेस ये लोग बेस्ट मेंटर्स हैं अब तक के, और ये लोग इंडस्ट्री में भी हैं तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। सो आप लोग जैसे, मतलब अगर ईमेल के थ्रू आप लोग को वो करवाना होगा कि मतलब हाँ हमको रिव्यू या फीडबैक ईमेल के थ्रू चाहिए, तो वैसे मिल जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे बाद में। तो अभी भी फॉर्म ओपन है, तो आप लोग उसको भर सकते हैं। अगर रिज्यूमे नहीं बनाया है तो इस सेशन के बाद जाओ और रिज्यूमे बनाओ, एक हफ्ते का टाइम लो और अपलोड करो, ठीक है। और वही अपॉर्चुनिटी बाद में बताऊंगा क्या क्या सरप्राइज है। तो भैया आप दिखा और दो। ये रेज्यूमे दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन इज। हाँ भैया आ रहा है। अभी यार देखो, मतलब इस रिज्यूमे में सबसे एक काफी बड़ी गलती है। ठीक है, इसमें सब काफी चीजें मतलब सही से मेंशन्ड है, बट एक चीज जो मेजरली मेंशन्ड नहीं है, इसमें कहीं भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो कहीं भी लेट बंदे ने मेल, तुमने किसी से रेफरल मांगा एंड उसने मतलब किसी को फॉरवर्ड किया, हाउ ही विल कॉन्टेक्ट डाउन। तो हमेशा कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब और तुम जनरली रेफरेंस मांगते हो ना, तो पोर्टल्स में काफी सारी चीजें होती है, मतलब वो नंबर मांगते हैं एंड तुम्हारा ईमेल मांगते हैं। मतलब जिन जो बड़ी कंपनीज है, मतलब छोटी में तो स्टार्टअप्स वगैरह में तुम ऐसे ही एचआर को फॉरवर्ड कर देते हो, बट बड़ी में इट हैज अ जनरल प्रोसेस है हाउ इट इज गोज। ठीक है, तो यही दिक्कत है। मतलब कभी भी अपना कांटेक्ट मिस मत करो। बट हाँ, मतलब अगर तुम लिंक्डइन वगैरह पे फॉरवर्ड कर पुट डाउन कर रहे हो तो हाँ, मतलब जनरली फॉर मतलब थोड़ा अपना इंडियन सोसाइटी अजीब सी है, मतलब काफी अलग रिएक्ट कर देती है, तो हाँ अपना नंबर हाइड कर सकते हो तुम। ठीक है, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब ये दोनों चीज दोनों के लिए वो करते हैं, मतलब कि हाँ भाई तुम अपनी प्राइवेसी के लिए नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स वो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, बट जब किसी को भेज रहे हो तो यूज द अनदर वन एंड उसमें अपनी ईमेल आईडी क्लियर रख सकते हो तुम, मतलब जो भी तुम लिंक्डइन या ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हो। ठीक है, फिर इसमें यार दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि द फॉन्ट इज वेरी स्मॉल। ठीक है,
यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है ये कंज्यूम किया जा सकता था, लाइक, ठीक है। तो ये एक अच्छी फील नहीं दे रहा है इधर, ठीक है। बट ये काफी सही है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी यूज बता दिया गया है, द प्रोजेक्ट प्रेडिक्ट द नंबर क्या था। और उस वाले ही केस में कंपैरिजन ऑफ 15 कंट्रीज इज डन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग वेरियस रिग्रेशन मॉडल्स। तो इसमें यही है कि फॉर्मेटिंग वाली दिक्कत है। इट्स, मैं मतलब पहली स्क्रीन में ही जज कर लूंगा यार कि इस बंदे ने मतलब इतना टाइम स्पेयर नहीं किया कि ये इन वाले स्पेस को फिल कर ले। सेकंड कम्स, मतलब इधर भी ये लिंक है, मगर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो ये सीधा गिटअप पे जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरी लाइन में आ गया। मतलब ये थोड़ा अजीब, मतलब फॉर्मेटिंग वाली ही दिक्कत है इधर भी। और क्या था इसमें, मतलब जनरली दो ही दिक्कत है, टेक्निकल स्किल्स, एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप, सीएसएस, दिस इज गुड। मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए, मतलब पहले तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए, उसी की साइड में तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो भी तुम्हारा बेस्ट हो वो तुम्हारा फर्स्ट हाफ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड फिर पर्सनल स्किल्स, ठीक है, मेंबरशिप, ठीक है। ये चीज है, ये लैंग्वेजेस वाला जो कॉलम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर दिस, ठीक है। तो इसको है ना पर्सनल स्किल्स के ऊपर मूव किया जा सकता है, क्योंकि और टेक्निकल मतलब जो भी अगर सॉफ्टवेयर डोमेन वाली कंपनी है तो उसके लिए लैंग्वेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन योर मेंबरशिप। एंड मतलब मेंबरशिप वाला बेसिकली नीचे आना चाहिए, दैन पर्सनल स्किल्स, मतलब टेक्निकल स्किल्स सबसे पहले, फिर लैंग्वेज, और फिर तुम्हारा सर्टिफिकेट्स, और इस तरीके से चीजें, ठीक है। इधर मार्क्स अच्छे हैं तो इट इज क्रिएटिंग अ गुड इन्फ्लुएंस, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब लाइक इट्स सीम्स गुड, ठीक है। बाकी देवराज वही सर, हाँ। सर व्हाट अबाउट राइटिंग द एम? मीन्स कहीं होता है कि जरूरी है, मतलब नहीं है, कहीं है कि लिख देना चाहिए, तो लिखना चाहिए कि नहीं? यार मतलब एम इज एज अ फ्रेशर वो काफी, मतलब वो होता है, मतलब तुम्हें खुद नहीं पता होता कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा होगा, तो एज अ फ्रेशर है ना अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब उसमें ये आ जाता है कि सामने वाले हैं ना, मतलब तो यू आर जस्ट हंटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। अगर तुम इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम जनरली एक्सप्लोर करने के मूड में होते हो, मतलब अनलेस तुम श्योर ना हो कि हाँ भाई मेरे को मशीन लर्निंग में ही जाना है, तो तुम लिख सकते हो। या फिर तुम्हें 3 या 4 साल हो गए इंडस्ट्री में एंड तुमने 3-4 साल मशीन लर्निंग पे ही काम किया है, तो तुम्हें पता चल जाता है हाँ भाई मैं इसी पे काम करता आ रहा हूँ, तो मैं यही चीज करूंगा। बट एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी तुम रियली श्योर नहीं होते हो कि यार तुम क्या करने वाले हो डाउन द लाइन, तो मतलब तुम अवॉइड कर सकते हो एज अ फ्रेशर टिल, मतलब जब तक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी 2 साल का नहीं हो जाता तुम्हें, तो तब तक तुम उस चीज को अवॉइड कर सकते हो, ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है वो, ठीक है। हेलो, सब यस सर। क्लियर है? बाकी तो यार इसमें सब सही लग रहा है, ठीक है। और किसी और पे जाते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना इधर क्या गलती है इस वाले में। अभी मैं दूसरा रिज्यूमे प्रेजेंट करता हूँ। और दिख रहा है? हेलो। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ, तो भाई ये सबसे दिख पहले रहा है। तो इसमें दो दिक्कत है, मतलब काफी दिक्कत है इस वाले में। और पहले सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी, मतलब जब तक तुम 2-3 साल इंडस्ट्री में वो ना कर लो ना, मतलब एक्सपीरियंस ना हो जाए तुम्हारा, तो तब तक वो तुम्हारा रिज्यूमे 1 पेज ही रहना चाहिए। अभी सबसे पहले इसने समरी लिखनी की, अ सोसाइटी नडी फॉलोज। भाई अगर तुम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो पहले, तो मतलब इसे पैराग्राफ को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो ए कभी छोटा नहीं होता सबसे पहले।
और ये सबसे मतलब पहला ही वर्ड है मतलब, तो ये दिक्कत दे जाएगा, ठीक है। और तुमने जो नीचे ही चीजें लिखी, ये तुम्हें नीचे लिखनी थी, आप बीन पार्ट ऑफ 3 हैकाथन्स, ये तुमने नीचे मेंशन पता नहीं किया है नहीं किया, ठीक है। ये नीचे मेंशन होना था, कोई इस पैराग्राफ में नहीं पड़ेगा यार, मतलब कि तुमने हैकाथन्स में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, वो सब तुम्हें अलग से लिखना था, बट तुमने इसी में भर दिया ये पैराग्राफ, तो ये बिल्कुल जीरो सेंस का हो गया, मतलब शायद मतलब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मेरी नजर चली गई, वरना मैं इसको कभी नहीं पढ़ने वाला था। देन कम्स इज एक्सपीरियंस, रेम्यूनिफाइड डेटा इंजीनियर, क्या किया तुमने, क्या गोल था, क्या काम किया वहां पे, कुछ नहीं पता, ठीक है। एसीएम एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, ठीक है, यहाँ पे तुम स्टूडेंट मेंबर थे, ठीक है, पता नहीं तुमने उसमें स्टूडेंट मेंबर रह के क्या काम किया। डीएससी एबीसीआईटी तुम कोर मेंबर थे, पता नहीं क्या काम किया। बिट ब्रेन क्लब वाइस प्रेसिडेंट थे, पता नहीं क्या काम किया। फिर ये चीज रिपीट हो गई वापस से, 2 बार तुमने सेम चीज डाल दी, तो इसमें सीधी केयरलेसनेस नजर आ रही कि बंदे ने मतलब तुम्हारी बेसिक एंटिटी होती है, मतलब तुम्हारी प्रोफेशनल वर्ल्ड की शुरुआत एक रेज्यूमे से होती है, ठीक है, और तुमने उसी पे टाइम नहीं दिया, तो सामने वाला इस पॉइंट पे ही जाके भाई मतलब हो जाएगा कि भाई ठीक है पता चल गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई है, मेरे को नहीं पता मतलब गोल क्या है। यहाँ पे लिखा आई सी फ्यूचर इन डेटा एनालिटिक्स, बट यहाँ मेरे को सब मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें नजर आ रही है ज्यादातर, ठीक है। स्टूडेंट मेंबर इन क्लब वाइस प्रेसिडेंट, ये चीज स्काई लैब्स आ गया, कंटेंट डेवलपमेंट किया, और ये चीजें मतलब ऊपर आ सकती थी, ये तुम्हारा मतलब जैसे पहले वाले रिज्यूमे में था ना अलग एक्सपीरियंस, उसमें आ सकता था। एंड 12, हाँ ये सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए यार, मतलब या इधर, ठीक है, मतलब 12 मतलब काफी मतलब कहीं कहीं यार 12th वगैरह होता नहीं, मतलब ऑलवेज मतलब अगर तुम यूएस वगैरह चले जाओ तो अलग सी सिनेरियो हो जाता है। तो सीनियर सेकेंडरी इज अ ग्लोबल टर्म, तो उधर समझ में आ जाता है। फिर इसमें वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस एज कॉजेज, और ये भी है ना तुम्हारे मतलब वॉलंटियर एक्सपीरियंस ही ये है, मतलब बिट ब्रेन क्लब अगर तुम्हें कोई पे नहीं कर रहा तो वो वॉलंटियर एक्सपीरियंस में ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैंपस एम्बेसडर भर चुके हैं काफी ज्यादा, ठीक है। फिर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, और फिर यहाँ पे पता नहीं क्या किया है, ये मेरे को नहीं समझ आया लाइक, और ये काफी दिक्कत दे जाएगा, ये काफी दिक्कत वाली चीज है। पता नहीं इधर फॉर्मेटिंग में दिक्कत हुई है, क्या चीज है, मतलब वो सामने पता चल जाएगा कि यार इसने अपना रिज्यूमे बना के खुद नहीं देखा है, तो ये हमें कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम देखें, ठीक है। ये हो गया प्लीज, और देखते हैं कोई और रिज्यूमे। भाई इसमें मैं नाम छुपा नहीं पाया, ठीक है, तो यार ये वो फैंसी कैटेगरी वाला रिज्यूमे आ चुका है, ठीक है। मतलब इसमें कंटेंट सही है कि प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे से डिस्क्राइब है, रिएक्ट नेटिव यूज किया, फायरबेस यूज किया, सेंटर प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन फॉर्म्स, और सबका लिंक भी दिया हुआ है, दिस इज रियली नाइस, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी सही है, लाइक इट्स मोर ऑफ द वॉलंटरी एक्सपीरियंस, मतलब डीएससी कोर क्लब या और सेकंड पोजीशन, तो वो ये सही है, लाइक
इस तरीके से। एंड एजुकेशन में भी ठीक है, वर्थली मेंशन किया गया। बट यार इधर जो ये है ना कि मतलब मेरे को नाम पढ़ने के लिए ही अपनी गर्दन को लाइक 45 डिग्री लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी मतलब 15 सेकेंड जो रूल है और रिज्यूमे के हिसाब से, उसके हिसाब से मतलब सही नहीं है, मतलब वो चीज़ इसमें यही गलती है। बाकी मतलब ओवरऑल सही है, मतलब अगर इसकी फॉर्मेटिंग सही हो जाए तो इट कंटेंट काफी सही है, बस फॉर्मेटिंग वाली चीज गलत है इसमें। ठीक है, ओके। फिर यार ये आ जाता है मतलब वही कि मतलब कैंपस एम्बेसडर कैंपस एम्बेसडर कैंपस एम्बेसडर कैंपस एम्बेसडर वाली चीज, तो लाइक ये तो काफी खत्म सी है। बट आई एज्यूम कि ये बंदा फर्स्ट ईयर का है तो ठीक है भाई, चल सकता है, मतलब लाइक ही इज एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ, तो वो चीजें कर रहा है तो भाई समझ में आता है। कोर्सेज परसुइंग डीएस एल्गो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपर्स पाइथन फॉर कोर्सेरा। मतलब ठीक है यार, मतलब फर्स्ट ईयर में इसने बना दिया है, बस ये है कि हाँ धीरे धीरे भाई, मतलब ये चीज फर्स्ट ईयर के हिसाब से सही है। बट अगर तुम इसे मतलब थर्ड फोर्थ ईयर तक कंटिन्यू मत करना कि मतलब सिर्फ कैंपस एम्बेसडर पढ़ दो कैंपस एम्बेसडर पढ़ दो। और इसमें भी यार तुमने क्या किया, मतलब आईआईटी दिल्ली रेजिडेंट्स में तुम्हारा क्या जॉब रोल था, वो चीज मेंशन कर दो। एमयूएन में क्या रोल था, वो चीजें ज्यादा सही रहेंगी। एंड ये तुमने मेंशन किया है तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया हुआ है, तो इनमें कुछ ना कुछ तो बनाया होगा यार तुमने, फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, तो उनको यूज कर सकते थे। मतलब ये अजीब सा सर्टिफिकेशन है। मतलब तुम खुद समझो तुम क्या लिख रहे हो, मतलब यार ये वही है कि मतलब काफी अजीब वाले सर्टिफिकेशन है कि मतलब कुछ भी करके सर्टिफिकेट ले लिया, तो ये मतलब दिस कुड एक्चुअली गो टू अ प्रोजेक्ट, पता नहीं है मतलब ये क्यों है यहाँ पे। स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स इंग्लिश स्पीकिंग मार्केटिंग लीडरशिप, मतलब यार ये खाली खाली भी है ठीक है, और मतलब सही है यार, मतलब फर्स्ट ईयर में मतलब एफर्ट मारा है तो उस हिसाब से बढ़ते हैं। बट तुम्हें मतलब देखना पड़ेगा यार कि क्या चीज किधर सही रहेगी, मतलब दिस कुड एक्चुअली कमेंट टू योर प्रोजेक्ट सेक्शन। अगर तुम इसका कोड वगैरह लिख दो सही से, मतलब कोड वगैरह का लिंक दे दो, और तुम्हारा रेज्यूमे +10 लेवल हो जाएगा सीधा। And another resumes. फिर वापस से एक और मॉडल टाइप रेज्यूमे आ जाता है, ठीक है। थर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग कनेक्ट फोर यूजिंग पाइथन, इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिथम यूज विजुअलाइजेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, मतलब अजीब तरीके से प्रोजेक्ट मेंशन है, मतलब जिस तरीके से होने चाहिए, मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट्स के नाम दे दिए है, ठीक है। और स्मार्ट कार बेस्ड ट्रैकर वेबसाइट एंड टॉप स्किल्स में मतलब इधर यार मतलब बेसिकली एक तो यहाँ पे वही
वापस से ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ भी बोलोगे वो आ गई तो काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है ये इधर स्किल्स वाला। एंड सेकंड इज मतलब तुमने जावा मेंशन किया है, जावा के प्रोजेक्ट्स नहीं है, मतलब कहीं जावा तुमने यूज़ नहीं किया। ऑल यू हैव सी प्लस प्लस समझ में आता है, तुम डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हो। मतलब स्किल्स शुड भी मतलब जो तुमने प्रोजेक्ट्स किए हैं ना स्किल्स कहीं ना कहीं उसमें कंपेयर हो जानी चाहिए यार, मतलब ये वाली चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी दिक्कत यार इसमें ये है कि सेकंड पेज खाली है फिर भी अटैच किया गया है, तो इधर वापस से वही केयरलेसनेस नजर आती है। मतलब कुछ पता ही नहीं है वाला यार इसमें लाइक, तो इट कुड बी इम्प्रूव्ड। और वाई यू आर गिविंग योर मतलब लिंक्डइन समझ में आता है, बाकी लिंक्डइन से आगे नहीं जाना चाहिए यार। मतलब फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अवॉइड करने चाहिए मतलब ऑन योर रिज्यूमे। मतलब पता चला तुमने कमेंट्स में किसी को गाली दे रखी है यार, वो कैजुअल चीज है। मतलब कैजुअल और प्रोफेशनल वर्ड को है ना मिक्स मत कर। मतलब भैया यस, हाँ बोलो, कोई बोल रहा है। अरे सत्यार्थ हाँ क्या बता। कि नाम कोशिश करिए थोड़ा हाइड करने की, जिनका हाइड ना हो उनका चल जाएगा। ठीक है नाम यार मतलब वो हो नहीं रहा था यार मतलब। नहीं ठीक है समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि परमिशन नहीं है ना उससे, मतलब फिर वो कहेंगे कि ठीक बता है दिया। यार बाकी किसी में नाम हाइड नहीं हो पा रहा तो चलिए ऐसे ही दिखा दीजिए, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रेज्यूमे पब्लिक ही होती है मेरे हिसाब से, तो लिंक्डइन पे ऐड करते हैं पब्लिक हो जाती है, आप उसको कहीं भेजते हैं तो पब्लिक हो जाती है। सही है। फिर एक डिसेंट रेज्यूमे मतलब सत्यार्थ ने काफी काम किया हुआ है अपने रेज्यूमे पे। सत्यार्थ का रेज्यूमे दिखा देता हूँ मैं। हटा दिख रहा है कुमार सत्यार्थ, और इधर आ गया ब्लॉकचेन डेवलपर वेब डेवलपर कम्युनिटी एनालिस्ट। तो इन जिन टर्म्स के बारे में हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हाँ भाई योर इन्फ्लुएंशियल टर्म्स शुड बी एट द टॉप, बस इसने यही गलती कर रखी है। मतलब अगर ये अपनी सीपी के प्रोफाइल जो है इसकी अगर उसको मेंशन कर देता तो इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव। एंड इट हैज मतलब ईमेल आईडी हो गई, नंबर हो गया, लोकेशन हो गई, ठीक है, दिस कुड अवॉइडेड। मतलब बट जगह थी तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गिटहब आ गया, लिंक्डइन आ गया, इधर प्रोजेक्ट मेंशन है, मतलब बेसिकली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। रिएक्ट डेवलपमेंट था स्टूडियोज पे, ये लिंक है उधर इस कंपनी का। और अभी तक एंड द वर्क ही इज डूइंग, ठीक है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट गर्ल्स स्क्रिप्ट नंबर ऑफ कोड। और इसमें गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगी। मतलब सही है यार, मतलब पूरा ब्लैक एंड वाइट फॉन्ट में है, पैराग्राफ्स भी नहीं है। एंड काफी प्रोजेक्ट काफी डिसेंटली मेंशन्ड है। मतलब एस जी बी वगैरह भी सही है, तो हाँ भाई मिल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हैंड यार मतलब सही है यार, मतलब इसमें कुछ लाइक मेरे को नहीं लग रहा, मतलब लाइक आई कुड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक इन इट। मतलब मेरे हिसाब से मतलब द लेवल आई एम एट, मतलब मे बी जो मुझसे ऊपर के लेवल के लोग हो वो इसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ दे, कुछ गलती निकाल दे, ठीक है। और मतलब अचीवमेंट्स थोड़े छोटे हो सकते थे, मतलब लाइक यू आर विनर ऑफ टास्क, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह हाइड किया जा सकता है, लाइक विनर वगैरह ये कर सकते हैं। मतलब यही है कि मतलब ये तो कमी तुम कहीं भी निकाल सकते हो वाली चीज कर रहा हूँ, बट सही है। मतलब दिस इज एन आइडियल रिज्यूम, और कैसे लिखा होना चाहिए, मतलब
सामने वाले को ये लगना चाहिए भाई कि इसने और भी ज्यादा किया होगा, बस इसके पास जगह कम पड़ गई, इस वजह से इसने मतलब डिस्प्ले आउट नहीं किया है। ठीक है, और यही था। चाओ। तो किसी के अभी कोई क्वेश्चंस वगैरह है, या लाइक इट कुड बी इन एनी डोमेन, ठीक है, वो ले सकते हैं हम फिलहाल के लिए। लाइक द रिव्यूज, हमारे पास ज्यादा रिज्यूमे नहीं आए थे यार, मतलब तुम लोग इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करते, मतलब तुम लोग डालते तो तुम लोगों को अपना रिज्यूमे रिव्यू कराने का टाइम मिल सकता। पवन तुम्हारा भी है, पवन तुम्हारा भी डिसेंट है, लाइक तुमने ऑलरेडी रिव्यू करा लिया था, अभी सही है वो। हाँ भैया। किसी का कोई क्वेश्चन? गाइस यही अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो, क्योंकि देखो रिज्यूमे सबसे पहला चीज़ जो होता है, रिज्यूमे चाहिए, ठीक है, कहीं भी अप्लाई करो, इंटर्नशिप या फिर जॉब, ठीक है। मैं खुद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए पड़ा हूँ। सबसे पहले चीज़ वो मांगते हैं, प्लीज़ सेंड मी योर ईमेल मी योर रिज्यूमे। तो सबसे पहला काम होता है उनको रिज्यूमे बुक करना, ठीक है। मैं भी कैमरा ऑन ही कर लेता हूँ, भैया ने ऑन कर दिया यार, मास्क वास्क लगाए हैं मैंने तो हाँ तो ठीक है, तो उसको रिज्यूमे को तुम लोग को पहले चीज होती है रिज्यूमे बनाना। तो अगर रिज्यूमे नहीं बनाया है तो फिर उसको फटाफट स्टार्ट कर दो बनाना, अभी भले ही टेम्पलेट लेके उठा के बना लो। भैया आप कोई एक सैंपल्स होंगे क्या आपके पास कोई, कि मतलब इन लोगों को सैंपल्स भी दिखा देते हैं? वैसे सैंपल्स तो यही सब सैंपल्स थे, मेरे पास भी एक दो हैं, मैं मतलब देखता हूँ। अभी भैया देखना कोई सैंपल्स हो तो आपके पास। और मैं अपना रेज्यूमे दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, उससे अच्छा क्या होगा। नहीं यार, नहीं सही है गाइज, मास्क वास्क लगा के रखो यार, घर में भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, घर में रह रहे हो जा रहा है सबको। एक दो है, मैं एक काम करूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे पास है एक, क्या नाम था, टीम थिंक एकेडमी ने भेजा था मुझको, एक हम लोगों ने सेशन कराया था डीएससी में, दूसरे डीएससी में, डीएससी वीआईटी है ना, तो उसमें कराया था। यार दिस इज माय रिज्यूमे, ठीक है, मतलब इसमें काफी गलतियां हैं यार, मतलब मैं आप बता देता हूँ लाइक, बट मेरे को जरूरत नहीं पड़ी मतलब इसको इम्प्रूव करने की। दिस इज मतलब 1 साल पुराना है, 1 साल से मैंने अपडेट ही नहीं किया। एंड मेरे को भी आइडिया नहीं था यार, मतलब लाइक तुम लोगों को सेशंस मिल रहे हैं तो मैं, वी वर वेरी कैजुअल, एंड हमें कोई बताने वाला होता नहीं था भाई कैसे करना है, क्या चीज करना है। तो मैं अपने में गलती बता देता हूँ यार, मैंने सबके में रिव्यू की, ठीक है। दिस कलर्ड कुड बी अवॉइडेड, कलर्ड हटा सकते था हम, ठीक है। फिर मेरे प्रोजेक्ट्स में लिंक्स नहीं है कहीं भी, यू वोंट फाइंड, तो मेरे को वो लिंक्स डालने थे। एंड और क्या है, बट मैंने उसको कमेंशेट करने के लिए गिटहब का लिंक दिया हुआ है। यही है कि मतलब पहले एक्सपीरियंस आ गया, और द 3 बुलेट पॉइंट्स वो चीज़ एक्सप्लेन हो गई, एंड सेकेंड प्रोजेक्ट्स आ गया। सो व्हाट रियली हेल्प है, मतलब इन्फ्लुएंशियल थिंग्स इस रिज्यूमे में क्या है, मतलब कोई बताएगा? क्या भैया, क्या चीज दिखना है? इन्फ्लुएंशियल थिंग्स देखनी है इसमें। जो हाईलाइटेड है भैया। नहीं यार, मतलब पता है, मेरे रिज्यूमे में भाई काफी, जैसे वो देख इनिशियल पॉइंट था, योर प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्स व्हाट यू आर, ठीक है। तो दिस इज माय गेम चेंजर प्रोजेक्ट, जो इधर जिधर मैं होवर कर रहा हूँ। सो इसको जिस तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, सब चीजें हुआ है, तो अभी तक मैं जितने भी मतलब इंटरव्यूज में गया हूँ, मैं ऑल मतलब 2 राउंड सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर होते हैं, इस प्रोजेक्ट पे डिस्कशन पे होते हैं।
So a good project really plays an important and vital roles in like your journey, मतलब कैसे, एंड उसको तुम कितने अच्छे से रिज्यूमे पे मेंशन करते हो उस चीज पे ही। एक तो ये चीज हो गई, फिर दूसरी अवार्ड्स में चले जाते हो तो माय अवार्ड सेक्शन इज लिटिल बिट इन्फ्लुएंशियल। ये दो ही चीज है यार, मतलब बाकी तो एवरेज ही है। मतलब मेरे मार्क्स कभी मतलब ठीक थे, एकदम मैंने मार्क्स नहीं लिखे कभी इसी वजह से। मतलब जितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थिंग्स रखोगे ना तुम, उतना ज्यादा सही रहेगा। एंड वन पेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए यार, मतलब उसको। भैया मेरे पास एक कुछ सैंपल्स हैं, मतलब फ्रेशर्स के लिए और फिर वर्क एक्सपीरियंस के लिए, तो शेयर करूं, स्क्रीन कर दूं, आप समझा भी देना। करूं? हाँ हाँ कर कर। एक मिनट। तो ये मिला था मुझको, ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ आ रही। तो ये बेसिक सैंपल रिज्यूमे फ्रेशर्स के लिए, मतलब मान लो कि फर्स्ट ईयर में ही आता है, तो ये सेकंड वाला छोड़ देना, ये तो उसके लिए है कि उनका एक सेशन अटेंड किया था। तो भैया ये वाला बता दो आप, फ्रेशर्स के लिए तो सही है ये वाला, कि मतलब फर्स्ट ईयर में आए हैं और फिर इन लोगों के पास उतना कुछ है नहीं, तो फिर फर्स्ट ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए यार ये, मतलब इसमें मतलब इट्स मोर ऑफ मतलब फर्स्ट ईयर के हिसाब से। एक सेकंड में लगा दूं, एक सेकंड। और भी है, ये रहा विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। ये सब सही है, मतलब मेरे को तो सही लगे थे कि मतलब ऐसे टेबल्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं आप लोग। यार मतलब एक ये साइड है, मैं मीट के लिंक में डाल रहा हूँ। अगर किसी को वो दिक्कतें आ रही है ना, तो इधर जाके तुम अपना रिज्यूमे बना सकते हो। मैं कर देता हूँ। निपुण मिया ने बोला है कि ऑल्सो इफ यू हैव रिसर्च वर्क मेंशन दैट ऑल्सो विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। ये तो बहुत सही, मतलब रिसर्च का बिल्कुल वो करना चाहिए। नोवो रिज्यूम्स मतलब इस पे काफी सही टेम्पलेट्स है एंड काफी सही से हो जाता है, तो यू कुड एक्चुअली यूज दैट। ये कुछ सैंपल्स है, मैं ग्रुप में हाँ मतलब शेयर। प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है क्या मेरा? क्या वॉइस क्लियर नहीं है, मतलब लेट रोज। कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर, हाँ ठीक है, हो गया। साफ हो गया। तो यार बस मेरी एक स्लाइड बची है जिसमें कुछ है नहीं, उसके बाद खत्म करता हूँ। एंड दैट टुक मोस्ट ऑफ द एफर्ट, तो मैं बिना उसे दिखाए बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। हाँ तो फाइनली दोज मोस्ट ऑफ यू माइट नो अबाउट मी और दोज डोंट, तो भाई like I work as a full-time software engineer and we basically मतलब logistic industry को automate करने पे काम कर रहे हैं। Till this is my मतलब the thing that I do generally Monday to Friday, and अगर तुम मेरे को Friday to Sunday मिलते हो तो आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन। हाँ बिल्कुल सीरियस बात है, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करता हूँ। एक आई एम नो मोर सीरियस, मतलब काफी टाइम फ्रेम्स है उस टाइम पे। मतलब मैं मेरे को जो चीजें पसंद है लाइक घूमना, लाइक मेरे को काफी घूमना ज्यादा पसंद है, तो लाइक वो चीजें करता रहता हूँ। एंड आई लव कनेक्टिंग टू पीपल्स, तो बेसिकली किसी को भी रैंडमली मैसेज भेजना शुरू कर दिया, ये चीज कर देता हूँ मैं। दो दिस इज ओवर लिंक्डइन नाउ, इंस्टाग्राम फेसबुक लेवल से हट गई है अभी, लाइक टू मच बेटर पीपल। मतलब ग्रो करना है यार जिंदगी में ही, तो ये चीज हो गई है। एंड इसके बाद अभी तुम्हारा क्वेश्चंस का हो चुका है, मतलब नहीं पूछे तो
प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी बाय मतलब भैया बता दो भैया बता दो। दिस वाज मतलब टाइम दिया था तुमने पूछने का, नहीं पूछा। अब मैं सच्ची स्पैम मत करना लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे। नहीं नहीं, ये सेशंस तक रहने देते हैं भैया कि मतलब अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में क्वेश्चन जितने पूछने पूछ लो। हाँ प्लीज मतलब दिस इज अ रिक्वेस्ट, मतलब स्टॉप स्पैमिंग मी ओवर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। मेरे को बंद करना पड़ जाता है यार वो। तो आई एम नो मोर अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस अभी है जो है। हाँ यार, क्योंकि सबका अपना अपना काम चलता है तो हाँ सब मतलब लोग यार बिजी रहते हैं। मतलब प्राइवेट लाइफ चाहिए रिकॉर्डिंग भैया। कर सकता है, कौन रिकॉर्डिंग करते हैं?